Hello my dear students, we are studying mathematical methods so as to understand physics completely. Now so far we have studied vectors. Now today we will understand some parts of calculus, okay, whatever is needed initially, because calculus we will be studying in detail in mathematics, but before that we will need this to understand some concepts of physics. So I will introduce you to those basics of calculus. Now in calculus we will come across two things. One is differentiation and the another one is integration. Differentiation and the second one is integration. Okay. Let us first start with differentiation or derivatives. Now what is differentiation? See, you must have studied functions. Now function is what? Now suppose there is some variable, say for example displacement. Okay, now displacement is a variable and we want to study some other thing, some other quantity that depends on this variable, okay, or that varies with this variable. Now since this is independent, this does not depend upon that other one, therefore this is called as independent variable. Why it is an independent variable? Because it is independent, it does not depend upon other variables, whereas that other quantity depends upon this variable, therefore that is called as a dependent variable. Okay, so that is a dependent variable. Clear? Say suppose we want to study velocity as the displacement of the particle changes. मतलब क्या है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है तो उसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ जाता है तब उसका वेलोसिटी कितना है. मतलब x डिस्प्लेसमेंट जैसा जैसा वैरी करता है वैसे वैसे वेलोसिटी पे वेलोसिटी का कैसा वेरिएशन होता है, ये हम लोग स्टडी करना चाहते हैं. तो वेलोसिटी इसमें क्या हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन दिस डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड this displacement is independent, it does not depend upon velocity. Okay, therefore this is an independent variable. तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज होती है ये देख रहे थे. इसको अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज हम लोगों को इस टाइप का ग्राफ मिलता है. ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे से velocity represent करेंगे. Clear? On x axis you have displacement and on y axis you have velocity. Suppose displacement के साथ velocity ऐसी वैरी करती, मतलब जैसे जैसे displacement बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे velocity और भी ज़्यादा और भी तेज बढ़ती चली जा रही. इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये velocity यहाँ पे है. Suppose this is x is equal to x0. क्लियर? और उसके बाद में जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ के इतना हो जाएगा तो ये वेलोसिटी इतनी होगी. सपोज दिस इज x इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x. क्लियर? सो ये दो पॉइंट्स, ये दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. अब इस पॉइंट पे ये है वेलोसिटी हमारी. ओके, सपोज दिस इज y0 and इस पॉइंट पे the velocity is this one, so this is say y1. now let us join these two points. ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते स्ट्रेट लाइन से. ओके, अब इसका स्लोप जो है वो हम लोगों को मिलेगा. स्लोप कितना होगा, ये लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन AB will be equal to what? This change in y, that is delta y. Okay, y initially y की वैल्यू ये है ना, उसके बाद में थोड़ी देर बाद इसका वैल्यू इतना है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द चेंज इन y, डेल्टा y अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अभी ये क्या हो गया,
this x minus x0, x0 plus delta x minus x0, this is equal to what? Delta x, that is change in x. So this gives us the slope of this line AB. Now you please try to understand the thing that I am trying to tell you now. Now if you go on reducing this delta x, मतलब क्या है, इसको और भी पास पास लेके चले आइए इसको, ओके, ये जो पॉइंट हमने लिया इसको इस तरफ बढ़ाइए. सो डेल्टा x को जैसे जैसे छोटा करते चले जाएंगे, इतना छोटा करते चले जाएंगे कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो डिस्टेंस, ओके. तो इसको हम लोग बोलेंगे एज डेल्टा x goes to zero or tends to zero. मतलब क्या है, डेल्टा x का वैल्यू जीरो कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, जीरो करेंगे तो फिर तो इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा. लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, डेल्टा x को इतना छोटा कर दिया है कि ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ा है वो. तो इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले आएंगे तो ये ऑलमोस्ट, मतलब इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा छोटा करेंगे. तो इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसी दिखेगी हम लोगों को? सी दिस इज दिस ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट x है और ये हमारी लाइन है, लाइन AB जो थी ना वो, ओके. सो ये क्या है, दिस इज टेंजेंट to this curve at point x. Clear? So ये जो tangent है इसका जो slope है that is represented by this delta y by delta x. But कब? जब ये delta x tends to zero, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, limit delta x tends to zero, okay, delta y by delta x, okay. इसी को दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. अब डेल्टा y क्या था हमारा, डेल्टा y वाज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड करता है, इसलिए y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये क्या हो गया हमारा, f ऑफ, ये क्या हो गया, f ऑफ से यहाँ पे f ऑफ y की जो जितनी कीमत है और यहाँ पे f ऑफ y की जितनी कीमत है उनके बीच का डिस्टेंस है, ओके. इसको एक काम करता हूँ मैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x है, ओके. सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली f ऑफ y प्लस डेल्टा y, ये अगर चेंज डेल्टा y बोलेंगे हम लोग, क्लियर. तो दिस इज f ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस दिस इज f ऑफ y, एंड और नीचे जो है दिस इज x0 प्लस डेल्टा x माइनस x0, ओके. जाने दीजिए, इतना टेक्निकलिटीज में हम लोग नहीं जाएंगे. सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx. इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जो आपको याद रखना है अभी, या जो समझना है चीज, वो ये है कि डेरिवेटिव मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है. डेरिवेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में कैसा चेंज होता है, कैसा वैरी होता है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, ओके. सो लिमिट डेल्टा, लेकिन ये जो चेंज किया है हमने डेल्टा x में, वो कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल. इट शुड ऑलमोस्ट बी जीरो, इट शुड नॉट बी जीरो, बट इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ओके. सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस यू जस्ट रिमेंबर दैट डेरिवेटिव is the rate of change of one quantity or one variable with respect to another variable. इसी को हम लोग शॉर्ट में y डैश बोल के रिप्रेजेंट करते हैं. सो y डैश is what, derivative of y. Clear? So this is the derivative. Now derivatives
को जब हम लोग मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे डिटेल में, तो सारी चीज़ें समझती चली जाएगी, लेकिन अभी इमीडिएटली हमको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। सो डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट रूल्स, बेसिक्स, दैट्स इट। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास fx, उसको अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है, सपोज 5 से मल्टीप्लाई किया है हमने, और इस चीज का अगर हमको इसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो क्या हो जाएगा? सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर से, कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है इस फंक्शन को, तो हमको जो डेरिवेटिव मिलेगा वो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज सेम एज दिस वन। ओके, तो किसी कांस्टेंट से अगर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेरिवेटिव अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उस डेरिवेटिव को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से हमको उसका डेरिवेटिव मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, से एक फंक्शन x का fx है और दूसरा फंक्शन है से gx, से फॉर एग्जांपल sin x प्लस cos x। ओके, अब इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ दिस एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे? इनका सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उनको एक साथ ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट सम ऑफ टू फंक्शंस। ओके, अब हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन है, सपोज u और v ये दोनों x के फंक्शंस हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है sin x इंटू cos x सपोज। अब इनका अगर हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे? सिंपल फार्मूला है, सिंपल चीज याद रखेंगे। ये सपोज फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड। तो डेरिवेटिव करते समय क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज इजी। So first function into derivative of the second function plus second function into derivative of first function. Is this clear? You understood? First function into derivative of second function plus second function into derivative of the first function. Okay, so this is the product rule. This is also called as product rule. Okay, मतलब कोई फंक्शन अगर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वो कोशेंट है, से sin x अपॉन cos x, इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट वी विल डू, सी, देखिए कोशेंट अगर है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा? डिनोमिनेटर v into derivative of the numerator u, clear, minus numerator into derivative of the denominator. See, denominator into derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator upon denominator square. Okay, upon denominator square or square of the denominator. This is called as quotient rule. This is called as what? Quotient rule. This is easy to understand, easy to apply also. Clear? So these four rules are basic rules of differentiation, and you will have to use this
एट मेनी प्लेसेस। ओके, तो ये बेसिक चीज है। अब इसके बाद हमको जो चीज याद रखनी है वो याद ही रखनी है, क्योंकि उसका इस स्टेज पे मैं कैसे वो आए ये सिखाना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग जल्दी सीखेंगे 11th क्लास में डेरिवेटिव्स। ओके, तो कुछ डेरिवेटिव्स है जो आपको याद ही रखने हैं। से फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर ऑफ n, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। n इज अ कांस्टेंट। ये क्या होगा देखिए, ये कांस्टेंट इनटू x जैसा का वैसा मैंने लिखा है, रेज टू द पावर ऑफ दिस कांस्टेंट -1। मतलब क्या है, सपोज x टू द पावर ऑफ 5 का डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आएगा 5x टू द पावर ऑफ 5 -1 दैट इज 4। दिस इज एज इजी एज दिस। क्लियर? दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज, अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। सो इस e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव अगर हमको लेना है तो e टू द पावर ऑफ x ही आएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ऑफ कोर्स इनका कैसे डिराइव किया है, कैसे मतलब कैलकुलेट किया है, ये आप लोग सीखोगे, एंड दिस इज इजी थिंग, इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं। देन डेरिवेटिव ऑफ cos फंक्शन d dx ऑफ cos x, so this will be equal to what, minus of sin x, you remember this. Then derivative of tan x, this is equal to sec square x. Next one is derivative of cot x, this is equal to minus cosec square x. Next one is derivative of sec x, this is equal to sec x tan x. Okay, then derivative of cosec x, so this will be equal to what, minus cosec x into cot x. ओके, देन एक चीज याद रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा, 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर? अब डेरिवेटिव ऑफ x अगर हम लोग निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए x टू द पावर ऑफ 1 है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। So 1 x to the power of 1 minus 1 that is 0, x to the power of 0 is 1, so therefore 1 into 1 is 1. So derivative of x is 1. Derivative of x square अगर होता तो 2x to the power of 2 minus 1 that is 1. So 2x होता x square का डेरिवेटिव। क्लियर? सो इस तरह से ये बेसिक्स डेरिवेटिव्स के आप लोगों को याद रखने होंगे, ये हम लोग कई जगह पे यूज़ करते चले जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वी विल स्टडी इंटीग्रेशन, ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कीप वॉचिंग द वीडियोज़ and do subscribe to this channel. Thank you very much.